Assalamu alaikum. This is lecture 20 of Gender Issues in Psychology. In the last lecture, we started a discussion on the gender differences in personality. And we tried to see how the two genders differ in terms of various personality characteristics. पिछले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि आमतौर पर यह ख्याल भी किया जाता है, एक ऑब्जर्वेशन भी है और लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है कि मेल्स और फीमेल्स अपने पर्सनैलिटी मेकअप और पैटर्न में एक दूसरे से मुख्तलिफ है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सी रिसर्चेस ऐसी भी हैं जिससे हमें ये मालूम होता है कि ये सब कुछ किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन इसमें बहुत हाथ उन स्टीरियोटाइप्स का है और कल्चरल वैल्यूज़ का है और बिलीव्स का है जिनके साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। In other words, there may be some personality differences between men and women, but they are not very deep differences, as deep as they are thought to be. In the last lecture, we talked about two major personality areas in which there are gender differences between men and women, that is aggression and communication. When we are talking about aggression, there is no denying the fact that there are very prominent, significant and deep differences between men and women in terms of the aggression that they experience and that they express and the way they express it. Men are involved more in physical aggression, whereas women are involved more in relational or social aggression. औरतें हमने ये देखा था, औरतें और यंग लड़कियां भी रिलेशनल एग्रेशन को ज़्यादा सीरियस समझती हैं, ज़्यादा तकलीफ समझती हैं और इसके साथ साथ दे इंडल्ज इनटू दैट टाइप ऑफ एग्रेशन। मर्द दूसरी जानिब फिजिकल एग्रेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, मार पीट में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, लेकिन रिलेशनल एग्रेशन को कम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे और हमने देखा था कि कम्युनिकेशन के मामले में, बेसिकली वर्बल कम्युनिकेशन के मामले में जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। औरतें जिस तरह का कम्युनिकेशन करती हैं उसका पैटर्न मुख्तलिफ है मर्दों के कम्युनिकेशन से। जो बेसिक डिफरेंसेस हमने देखे थे उसमें यह था कि औरतें जब बात करती हैं तो दे टेंड टू रेज द पिच ऑफ देयर वॉइस एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। जब वो जुमला ख़त्म करती हैं, कोई बात ख़त्म करती हैं, तो उसके एंड में अपनी पिच को रेज करती हैं। आदमी आमतौर पे उससे उलट करते हैं, आदमी गुफ्तगू का आगाज़ ही बुलंद पिच के साथ करते हैं अमूमन। Also, women appear to be, and young girls also, they appear to be less assertive and more tentative in their expression and in their communication. जब वो बात कर रही होती हैं और अपनी किसी राय का इजहार करती हैं तो आमतौर पर वो इतने एम्फेटिक तरीके से और इस अंदाज से और इस टोन में बात नहीं करती जिस तरह से कि मर्द करते हैं। फीमेल्स की टोन इस तरह की होती है और उनका अंदाज ऐसा होता है कि वो लगता है that they are less self-confident and they are less assertive and they are not sure, tentative. वो जो बात कर रही हैं उसके बारे में 100% उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। जबकि मेल्स जब बात करते हैं तो उनके बात करने का अंदाज, उनके टोन, पिच, वॉल्यूम, सब चीज़ें ऐसी होती हैं और उनके स्ट्रेसेस इस तरह के होते हैं कि सुनने वाले को ये मैसेज मिलता है कि ये शख्स जो है ये 100% श्योर है ऑफ व्हाट ही वांट्स टू से एंड व्हाट ही वांट्स। Actually, in reality, this may not be true. A woman who is using feminine style of communication may be very exact, very precise and very confident. And a man who is talking in a very emphatic tone may actually be not sure about what he is saying. बहुत से मर्द जो हैं महज अपनी आवाज़ रेज करने की वजह से और अपने अंदाज की वजह से लोगों पर कंट्रोल कर लेते हैं और अपनी मर्जी उनसे मनवा लेते हैं। Now, we are not saying that women do not use that style. Many women also adopt that style and they use that assertive style. And there are many men who are meek, who are weak and who appear to be quite shaky and uncertain in their communication style. But we are talking about overall average gender differences in communication. Another thing that we said in the last lecture was about women was that when they end their sentence and when they are talking to a person, they usually tend to add a tag to their conversation. After any sentence about an opinion or a decision, they tend to add tags to it. यानी जब किसी से बात कर रही हैं, खास तौर पे मर्द से,
तो आखिर में कोई ना कोई ऐसी चीज ऐड करेंगी लाइक इजंट इट, जिसका मकसद ये होता है कि दूसरे शख्स से भी रीअश्योरेंस और रीइंफोर्समेंट ले ली जाए कि मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है या नहीं। ये सब कुछ तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज के लेक्चर में हम कम्युनिकेशन के एक और एस्पेक्ट को देखेंगे और वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टुडे वी विल सी हाउ जेंडर डिफरेंसेस आर फाउंड इन टर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, you know, is that aspect or that part of communication in which words are not used. Rather, non-verbal body language is used, gestures are used, eye contact is important, the posture of the person is important, the bodily adornments that they use, the little noises that they or sounds that they make, like or and the type of color that they choose to wear. इस तरह की बहुत सी चीजें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है। जब हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा मैसेज या कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्फाज पर डिपेंड नहीं करता, ना ही सिर्फ हमारी आवाज़ की टोन पर डिपेंड करता है। मे बी आप बहुत ज़्यादा एम्फैटिक टोन में बात कर रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन आपके हाथ कांप रहे हो या आपकी टांगें कांप रही हो। So if the other person is skillful and if the other person has knowledge about non-verbal behavior and body language, the other person will very easily understand and evaluate what you are thinking. So males और females में non-verbal communication के patterns एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. Gender differences in non-verbal communication and behaviors. Men and women differ in terms of non-verbal communication and behaviors. Females are more sensitive to subtle non-verbal cues than men. Women may be better at decoding or interpreting others' body language. But there are no differences in the display of postures or gestures associated with dominance in non-verbal social situations. So, जो basic और बिल्कुल इब्तदाई difference हम देखते हैं males में और females में in terms of their non-verbal communication skills, that is that women are more sensitive to the body language used by the other person, the gestures that a person uses. औरतों में आम तौर पे, again we are talking about general average situation, हम exceptions की बात नहीं कर रहे, हम groups की बात कर रहे हैं, ज़्यादा तादाद में लोगों की बात कर रहे हैं. औरतें आम तौर पे दूसरे की बॉडी लैंग्वेज को, उसके जेस्चर्स को जल्दी नोटिस कर लेती हैं, जल्दी पिक कर लेती हैं, जल्दी डिकोड कर लेती हैं, उसका मतलब जल्दी अखज़ कर लेती हैं. और इसके साथ साथ उनमें उसको डिकोड और डिसाइफर करने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होती है, which means that they at times may be wrong in decoding. यानी फीमेल्स बॉडी लैंग्वेज को जल्दी पिक करती हैं, अंडरस्टैंड जल्दी करती हैं, डिकोड डिसाइफर जल्दी कर लेती हैं. हाँ, ऐसा करने में गलती का भी इम्कान है. आमतौर पर मर्द इतने ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते कि किसी ने अपना हाथ किस तरह से हिलाया था या अपने पाँव कैसे हिलाए थे या कान को कैसे खुजाया था. औरतें इस मामले में ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं. Men usually tend to ignore many of the body language aspects of a person's communication. आदमियों बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी जो औरतें पिक कर लेती हैं, आदमी आमतौर पर उनको इग्नोर कर देते हैं और उनको नोटिस नहीं करते. बट वी हैव सीन इन एम्पिरिकल रिसर्च दैट ऑल्दो देयर मे बी differences between the sensitivity of men and women about bodily postures and gestures, but when we talk about the body language or gestures or postures that they use for expressing dominance or for that matter aggression, men and women do not differ much. जो gestures, जिस तरीके से आप अपना हाथ गुस्से में हिलाते हैं या डोमिनेंस में हिलाते हैं या अपनी बात को असर्ट करने के लिए हिलाते हैं, जिस तरीके से अपनी गर्दन को मोड़ते हैं या आप खड़े होते हैं, ये चीज़ें मेल्स और फीमेल्स में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, इनफैक्ट फ़र्क नहीं है. सो इन अदर वर्ड्स डिफरेंस किस चीज़ में है? सेंसिटिविटी में, नोटिस करने में, और अगर देखा जाए ओवरऑल एवरेज तो बहुत से एस्पेक्ट्स हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जिसमें
मेल्स और फीमेल्स एक जैसे ही होते हैं. Women have a tendency to gaze when someone is talking, especially a man. Men typically do not look at women talking. Women are generally more formal and tense in their posture and demeanor. तो औरतें जब किसी से बात कर रही हूँ, खास तौर पे किसी मर्द से, तो वो उसकी तरफ देखकर और उसकी आंखों में देखकर बात करती हैं. मेल्स आमतौर पे जब किसी औरत से कम्युनिकेट कर रहे हों तो उसकी तरफ, उसके चेहरे की तरफ देख के बात जरूरी नहीं कि करें. Now remember one thing, these studies that we have quoted here, and you have the references in your handouts and on the screen as well, you can check these studies. These studies were conducted in the West. And even in the West, they found that men usually don't look at women when they are talking to them. Women look at men when they are talking to them. यानी ये सिर्फ एक कल्चरल चीज़ नहीं है कि हम हमारे मुआशरे में हम कहते हैं कि कोई मर्द किसी औरत से बात करता है तो उसके चेहरे की तरफ नहीं देख रहा होता. बाहर की दुनिया में भी, दूसरे मुल्कों में भी ऐसा ही रवैया पाया जाता है. ऑल्सो women are more likely to smile than men. So एक तो फीमेल जो है अपनी गुफ्तगू के दौरान ज़्यादा टेंस होती हैं, ज़्यादा अलर्ट पे होती हैं, ज़्यादा ऑन गार्ड होती हैं. मर्द निस्बतन रिलैक्स होते हैं. आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, अगर एक मर्द और एक औरत या 5 मर्द और 7 औरतें बैठ के गुफ्तगू कर रही हैं तो आप उनकी बॉडीली पोजीशन देखें, उनके जेस्चर्स देखें, उनका पोस्चर देखें. Men will be usually sitting in a relaxed manner, women in a tense manner. लेकिन इसके साथ साथ जहाँ तक स्माइल करने का ताल्लुक है, औरतें ज़्यादा स्माइल करती हैं अपनी गुफ्तगू करते हुए, आदमी यूजुअली ज़्यादा स्माइल नहीं करते. Again, it can be a cultural thing. And I personally believe that this smiling is a cultural phenomenon. Cultural phenomenon in the sense that in some cultures, people smile more on average. So if you are going in somewhere in a Western society, people usually greet each other with a smile. And a smile contributes a lot to the effectiveness of your communication as well as the effectiveness of your personality. और अगर हम यहाँ पे आमतौर पे देखें और दुनिया के बहुत से मुल्कों में देखें तो लोग आमतौर पर strangers के साथ स्माइल नहीं करते. We are not saying that we should be talking and laughing and smiling with strangers. लेकिन अगर किसी ने आपको हेलो कहा है या सलाम कहा है या उसने आपसे कहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं या ये कि आप क्या करते हैं, अगर उसको एक हल्की सी स्माइल के साथ बात का जवाब दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पैदा होता है. मगर हम यूजुअली एज अ कल्चर वी डोंट स्माइल. आमतौर पे हमें ज़्यादा लोगों के चेहरे पर, माथे पर बाल ज़्यादा दिखाई देते हैं, मुस्कुराहट कम दिखाई देती है. Whereas if you see, look into the research into non-verbal behavior and communication, you will come to know surprisingly that we have to move a large number of facial muscles in order to frown. And we have to move very few muscles, facial muscles, in order to smile. यानी दरअसल फ्राउन करने में हमारी स्किन, हमारी बॉडी और हमारे मसल्स ज़्यादा थकते हैं और स्माइल करने में उनको कोई ख़ास एफर्ट नहीं करनी पड़ती. तो फिर हम स्माइल क्यों कम करते हैं और फ्राउन क्यों ज़्यादा करते हैं? ये एक कल्चरल चीज़ है और ये एक स्ट्रेस की अलामत है कि हम ज़्यादातर टेंस रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं. बट एनीवे, वी वर टॉकिंग अबाउट जेंडर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ स्माइलिंग एंड टॉकिंग टू पीपल एंड ग्रीटिंग देम. सो इन विच women have an edge in terms of smiling, but men have an edge in terms of being relaxed and open. According to Henley, these differences reflect the power position of men and submission of women. It also indicates that men have a higher and women a lower status in society. The gestures used by men are the ones used by people with a high and powerful position. The case is the opposite with women. So why are men more relaxed and more open in their body language and women tense and tending to smile? One explanation, and quite plausible explanation, is the cultural pressure, the upbringing and the cultural atmosphere. औरतों की पोजीशन
इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक सोसाइटी में लोअर है, therefore they have a higher need to please others. That's why they smile. Men have been brought up and trained in such a manner that they do not feel any need for pleasing people, so they smile less and they are relaxed and they are happy because they do not feel any tension that they have to please other people or other people are watching them or evaluating them. इसके अलावा एक और चीज जिसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मेल और फीमेल डिफरेंसेस देखे गए हैं रिसर्च में, वो है इन टर्म्स ऑफ टचिंग, द यूज ऑफ टच ड्यूरिंग कम्युनिकेशन. रिसर्च में यह देखा गया है कि औरतें बात करते हुए आमतौर पर ज़्यादा टच इस्तेमाल करती हैं. दूसरे शख्स से बात करते हुए उसको छेड़ना, उसके हाथ पे पैट करना या गले मिलना, गले लगा के प्यार करना. इट कैन बी द सेम जेंडर पर्सन और द ऑपोजिट जेंडर, दैट डजंट मैटर. आदमियों में ऐसा कम होता है और आदमी टच किए जाना आमतौर पे पसंद नहीं करते. Some studies have revealed that in interpersonal communication, males use less touching than females. Men touch but do not generally like being touched. Women generally give a positive response to touching but do not usually take initiative in touching. So females use more touch in communication but usually do not take initiative in that. Again, वही theory हमारे सामने आ रही है कि वो टच ज़्यादा करती हैं लेकिन इनिशिएटिव आमतौर पे नहीं लेती. Submissive position, lower status in the society. But this is of course not my explanation. I am just telling you that the different explanations and different theories about this phenomenon. मर्द कम टच इस्तेमाल करते हैं, कम टच किए जाना पसंद करते हैं. So this is another gender difference, and we know that touch and touching have a very important place in non-verbal communication. Different type of touch can have different type of effect. In different type of relationships, we use different type of touch. डॉक्टर जिस तरह से पेशेंट को टच करता है वो वैसे नहीं है जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को टच करती है. जैसे बड़ा भाई छोटे भाई को टच करता है वो वैसे नहीं है जैसे कि वो भाई अपने दोस्त को टच करता है. सो टच का अपना रोल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में. इंटीमेसी ज़्यादा शो होती है, नज़दीकी अफिलिएशन और अफेक्शन का इजहार होता है. सो अब इसका मतलब ये है कि हम ये देखते हैं कि मर्द यूजुअली हर एक के साथ अफिलिएशन का और अफेक्शन का इजहार इस तरह से नहीं करते. दैट डजंट मीन दैट दे डू नॉट फील एंड एक्सपीरियंस अफिलिएशन एंड अफेक्शन. It's only that they do not use touch as an expression of that with everybody. Of course, they use touch, लेकिन फीमेल ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं. ये तो एक चीज़ थी जिसमें हम देखते हैं कि थोड़े से जेंडर डिफरेंसेस हैं. और साथ साथ जब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए सोचने की कि हम जेंडर डिफरेंसेस कह रहे हैं, जेंडर डिफरेंसेस के बारे में आपको बता रहे हैं, रिसर्चेस का रेफरेंस भी दे रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन से डिफरेंसेस हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर के हैं, बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं. इनमें से बहुत से डिफरेंसेस ऐसे होंगे जैसे कि हम ये कहें कि मर्दों की एवरेज हाइट 5 फुट 10 इंच या 9 इंच होती है. ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल हाइट मैं आपको बता रही हूँ. या ये कह दें कि ऑन एवरेज फीमेल्स के बाल लंबे होते हैं और मर्दों के बाल छोटे होते हैं. सो डिफरेंस तो है, लेकिन ये डिफरेंस कितना सीरियस डिफरेंस है. अभी तक हम जिन डिफरेंसेस को देख रहे हैं पर्सनैलिटी में, डिफरेंसेस तो हैं, उतने सीरियस और उतने बड़े नहीं हैं जितने के स्टीरियोटिपिकली समझे जाते हैं. नाउ कमिंग टू अनदर एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी डिफरेंसेस in which we have seen some differences between men and women, that is in terms of expressiveness and sensitivity. As the very name shows, expressiveness means अपना इजहार करना, गुफ्तगू करना, ख़ास तौर पर अपने बारे में ओपनली बात करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना. और सेंसिटिविटी, दूसरे ने जो कहा, दूसरे ने जो किया, उसके बारे में हसास होना, उसको महसूस करना और उसका असर लेना और रिएक्ट करना. Men and women also vary in their expressiveness and sensitivity to what the other person is conveying, doing or communicating in general. Women have been found to be superior both in accurately sending
and in understanding non-verbal communication. Women have an ability to identify negative feelings except anger in men's case. Females ज़्यादा expressive हैं, ज़्यादा इजहार करती हैं, मर्द समझ के इजहार करते हैं. ऐसी बहुत सी रिसर्चेस हैं जिनमें हमें ये भी दिखाई देता है कि men usually express themselves in front of strangers. Women have a tendency to talk more about themselves, about personal things, to even strangers. जैसे कि अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, अगर आप एक खातून हैं, ज़्यादा इम्कान है कि आप अपनी नेबर के साथ ज़्यादा बातें करेंगी. जो आपके साथ ट्रैवल कर रही हैं उसको बहुत सी बातें अपने बारे में बता देंगी. इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई अपनी फैमिली के टॉप सीक्रेट उनको डिस्क्लोज करें, बट छोटी छोटी चीज़ें, घर में क्या होता है, घर के लोग किस तरह के हैं, घर का माहौल कैसा है, औरतों में ये टेंडेंसी है कि उसके बारे में ज़्यादा बात करती हैं. Men on the other hand do not indulge into such activity. अगर ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं तो अपने साथ बैठे हुए शख्स को अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री वो नहीं बताते. So women are more expressive in that regard. Similarly, in terms of sensitivity of what people have been doing and saying, in that also women have probably the higher scores on that. वो सेंसिटिव होती है इस बात पे, दूसरों की बात का जल्दी असर लेती हैं और हम ये भी देखते हैं कि औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा रोती हैं. Again, this can be totally a cultural phenomenon. औरतों को, लड़कियों को, छोटी बच्चियों को रोने से कभी मना नहीं किया जाता. कभी उनको कोई नहीं कहता कि लड़कियां नहीं रोएंगी. अगर वो बड़े होकर जल्दी रो पड़ती हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो सेंसिटिव है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि दे हैव लर्नड हाउ टू express their emotion through their tears. According to Brown, this heightened ability may be a function of women's less powerful position, and they may have to develop sensitivity to the leakage of negative feelings. यानी ये भी हो सकता है कि उनको culturally औरतों को इस बात की ज़रूरत हो कि अपने जज्बात का इजहार करें, और जो suppression की वजह से या exploitation की वजह से जज्बात जो हैं वो दब के रह गए हैं, उनका इजहार करने के लिए वो ज़्यादा बोलती भी हैं अपने जज्बात के बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, और आंसुओं का भी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं. इसी से रिलेटेड एक और चीज़ है. अगेन दिस मे बी योर कॉमन ऑब्जर्वेशन, दैट इज जेंडर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ सेल्फ डिस्क्लोजर. क्या मतलब है इसका? अपनी ज़ात को डिस्क्लोज करना, खुद से अपने बारे में ज़्यादा बताना, और बाज़ औक़ात जब दूसरे ने नहीं भी पूछा उस वक्त भी अपने बारे में बताना, और जिस वक्त अपने बारे में थोड़ा बताने की ज़रूरत है उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा बता देना. दूसरी जानिब कुछ लोगों की सूरत में जब कोई पूछे भी तो भी अपने बारे में ना बताना या बहुत कम बताना. Females are more likely to indulge in self-disclosure. They are more likely to self-disclose and share their inner ideas and feelings. Men and women consistently differ both in degree of disclosure and what they actually reveal. As compared to men, women generally disclose more, especially about emotions, relationships, and other personal matters. औरतें ज़्यादा डिस्क्लोज करती हैं, ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिस्क्लोज करती हैं. मसलन जैसे कि हमने पहले कहा, अगर वो कहीं ट्रैवल कर रही हैं या किसी से बात कर रही हैं या इवन किसी वेटिंग एरिया में खड़ी हैं, तब भी वो बहुत सी बातें दूसरी औरतों के साथ कर लेती. One of the explanations is that probably they feel less threatened and they have less things to hide. ये एक थ्योरी की बात करें, फेमिनिस्ट व्यू पॉइंट के मुताबिक ये भी हो सकता है कि उनको खतरा महसूस नहीं हो रहा. उनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं और जो एक्टिविटी एक औरत कर रही है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर वो किसी को बता भी दे. आदमी की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिसको वो समझता है कि अगर मैंने इसको डिस्क्लोज कर दिया तो मुझे नुकसान हो सकता है. फीमेल नहीं समझती कि अगर वो ये बता दे कि उसके इतने बच्चे हैं या उसको क्या चीज़ बुरी लगती है, क्या चीज़ अच्छी लगती है, उससे उसको कोई थ्रेट हो सकता है. सो दैट इज़ वन एक्सप्लेनेशन व्हाई वुमेन सेल्फ डिस्क्लोज मोर, बट इट्स अ फैक्ट दैट मेन डिस्क्लोज लेस एंड वुमेन डिस्क्लोज मोर. Men, especially highly masculine men, disclose more in one context. They disclose more with women with whom they anticipate future interaction. In disclosing more to women in such a context, these men
seem to want to take the lead in exploring possibilities for a future romantic relationship with the woman. Men disclose only to women with whom they are intimate or wish to become intimate. Now, there is one situation in which men may and men do disclose more about themselves, about their personal experiences. और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी ब्रॉड बेस्ड रिसर्चेस में देखा गया है कि आदमियों में टेंडेंसी है सेल्फ डिस्क्लोजर की उस वक्त जब वो किसी फीमेल से, ऐसी फीमेल से गुफ्तगू कर रहे हों जिसके बारे में उनका ख्याल हो कि आइंदा मेरी इसके साथ एक दोस्ती की रिलेशनशिप बढ़ सकती है और मे बी वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है। ऐसी सूरत में जब उनको ये लग रहा हो और या जब वो ये चाह रहे हों कि हमने एक रिलेशनशिप, मुझे एक रिलेशनशिप इसके साथ डेवलप करनी है या मुझे एक फ्रेंडशिप बनानी है इसके साथ, तो वो ज़्यादा डिस्कस करते हैं अपनी ज़ाती चीज़ों को, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को, एंड इफ़ दे आर ऑलरेडी मैरिड दे टॉक मोर अबाउट देयर वाइफ और देयर फैमिली और देयर चिल्ड्रन और देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अगर वो खुद अगर इस वक्त वो 50 या 60 बरस की उम्र के हैं तो वो शायद अपनी 10 बरस की या 5 बरस की उम्र के बहुत से वाक़यात उनको सुनाएंगे। पर्पस ये है, टू कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पर्पस ये है कि दूसरे शख्स को इम्प्रेशन मिलता है कि ये शख्स बहुत ओपन है एंड ही एक्सप्रेसेस अ लॉट एंड ही हैज़ नथिंग टू हाइड। सो अगेन यू कैन सी इट कैन बी अ कल्चरल थिंग। ये कोई इनबॉर्न चीज़ नहीं है, दिस इज़ व्हाट दे हैव लर्न्ड। ये कोई इनबॉर्न डिफरेंसेस नहीं है कि मर्द जो हैं वो अपने आप के बारे में डिस्क्लोज कम करते हैं और तब डिस्क्लोज करते हैं व्हेन दे एंटिसिपेट अ फ्यूचर रिलेशनशिप। This has to do with the traditional roles and upbringing of men and women in any given society. Self-disclosure is also influenced by gender role stereotypes. People, both men and women, if insecure and socially anxious, are likely to disclose themselves in a way that is consistent with their gender role stereotypes. In doing so, they may reinforce and perpetuate those stereotypes. अगर किसी सोसाइटी में बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की स्टीरियोटाइप्स मौजूद हैं, स्ट्रिक्ट का मतलब है कि जिनके साथ लोग बड़ी सख्ती से बिलीव करते हैं जिनमें, तो जो लोग, जो ग्रुप्स लो स्टेटस के होंगे, टेंस होंगे, एंजाइटी का शिकार होंगे, वो जब डिस्क्लोजर करेंगे या बात करेंगे या अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे तो उनके बिहेवियर्स और उनकी बातचीत का अंदाज खुद ब खुद उस स्टीरियोटाइप के मुताबिक हो जाएगा जो कि उनके बारे में सोसाइटी में होल्ड की जा रही है। तो अगर औरतों को वीक कहा जा रहा है, औरतों को कमज़ोर समझा जा रहा है, तो औरतें अपनी गुफ्तगू भी उसी अंदाज से करती हैं एज इफ दे आर वेरी वीक एंड दे आर वेरी लेस कॉन्फिडेंट अबाउट देयर एबिलिटीज। तो मुख्तलिफ कल्चर्स में इस चीज़ का असर हो सकता है। जिन कल्चर्स में, और अगर आप आजकल अपने माशरे में भी देखिए, मुख्तलिफ तरह के स्कूल सिस्टम्स हैं। कुछ स्कूल सिस्टम से निकलने वाली बच्चियां बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होती हैं, कुछ से निकलने वाली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं। कुछ स्कूल सिस्टम से निकलने वाली बच्चियां बहुत ज़्यादा शाय, इनहिबिटेड और लेस कॉन्फिडेंट होती हैं। बाज़ स्कूलों में बच्चों के साथ इस हद तक सख्ती का बर्ताव किया जाता है और ऐसा सख्त रवैया इस्तेमाल किया जाता है कि खा लड़के हों या लड़कियां, वो वहाँ से शाय ही निकलते हैं, टिमिड ही निकलते हैं, डरते हुए, घबराए हुए और सेल्फ कॉन्फिडेंस से महरूम। जिसका मतलब है कि स्कूल सिस्टम जो है, तरबियत और बिल्कुल इसी तरह से पेरेंटल ट्रीटमेंट जो है बच्चों को एक ख़ास तरह की पर्सनैलिटी दे सकता है। तो जो ये शाइनेस है या एक्सप्रेसिवनेस जो है, ये बच्चे की तरबियत का हिस्सा हो सकती है और उसके साथ दूसरों के बर्ताव का हिस्सा। Gender, affiliation and friendship. Some gender differences have been found in affiliation and friendship patterns. It has been reported that first-year university resident students' social networks were different in some respects. As compared to women, men included more females in the social network. The exchange of informational and emotional support with friends was higher in females. In terms of interaction with family members, males and females were alike, but within their network, females interacted more. The friendship patterns also vary with gender. Males और females के friendship patterns भी मुख्तलिफ होते हैं।
जिस तरह की दोस्तियां फीमेल्स की होती हैं विद इन द सेम जेंडर, मेल्स की उस तरह की दोस्तियां विद इन द सेम जेंडर नहीं होती. इन सम रिस्पेक्ट्स men are more open with their male friends, women are less open with their female friends, but in some respects women disclose a lot and they share a lot with their same sex friends. आदमी अपने सेम सेक्स फ्रेंड्स के साथ उतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, उतनी ज़्यादा अपने बारे में चीज़ें नहीं बताते और बिल्कुल सही अंदरूनी बातें उनको नहीं बताते जिस तरह से कि फीमेल्स अपनी फीमेल फ्रेंड्स को बताती हैं. There is a host of research that suggests that when we are talking about successful aging, successful growing up, the importance of same-sex friends becomes very important. जब लोग उम्र में बढ़ते हैं 30 years के बाद, 30-35 के बाद, और फिर gradually they are heading towards the middle age और फिर उसके बाद ओल्ड एज की तरफ जाते हैं, मिडिल एज में ख़ास तौर पर सेम सेक्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. छोटी उम्र में आमतौर पे लोग, टीन एज में ख़ास तौर पे, और फिर 20s में एंड इवन इन देयर 30s, फ्रेंड्स फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर टाइम इज़ गिवन टू दोज फ्रेंड्स. लेकिन जब उम्र गुजरने के साथ, व्हेन यू रीच अराउंड द 40s, देन यू शुड हैव at least some same sex friends. औरतें दोस्त ज़रूर होनी चाहिए, मर्दों की के मेल फ्रेंड्स ज़रूर होने चाहिए. और हम ये उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो कि एक्वेंटेंसेस हैं जिनसे आप कभी कभार मिलते. वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स. वो फ्रेंड्स वो भी हो सकते हैं जो स्कूल के ज़माने में उस शख्स के दोस्त थे, ऐसे भी हो सकते हैं, कॉलेज की फ्रेंडशिप्स भी हो सकती हैं. ये भी हो सकता है कि इंटरनेट के ज़रिए आपको कोई अपने हम ख्याल लोग मिल जाए. But it is always very nice to have friends from your own gender. You can have other friendships also, but for sharing the same experiences, you can have this experience only with the same gender friends. Verbal communication is an important element in female friendships. Female friendships depend more on verbal exchange. In case of male friendships, they evolve from shared activities. Females की friendships में बातचीत ज़्यादा होती है, डिस्कशन ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंसेस ज़्यादा शेयर किए जाते हैं. मेल फ्रेंडशिप में आपको बहुत कम ऐसे मेल्स दिखाई देंगे जो घंटों बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते रहें. शायद आप अगर आप देखें और आपको कुछ अजीब सा ही लगेगा कि 4 या 5 लड़के बैठे हुए और पिछले 3 घंटे से बैठ के सिर्फ बातें करें. बट इफ़ यू लुक एट वुमेन, यू कैन सी मैनी ऑफ सच वुमेन. आप औरतों के बहुत से ग्रुप्स देख सकते हैं जो बैठी हैं और पिछले 3-4 घंटे से कुछ नहीं करी, सिर्फ एक दूसरे से बातें करी, या कहानियाँ सुना रही, या वाक़यात सुना रही हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करी, और कुछ तो फिल्मों की कहानी सुना रही. मेल फ्रेंडशिप्स आर सेंटर्ड अराउंड देयर एक्टिविटीज़ दैट दे शेयर. उसमें कोई ना कोई एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी आमतौर पर ज़्यादा शामिल होती है. वो किसी स्पोर्ट की वजह से एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं, मॉर्निंग वॉक की वजह से दोस्त हो सकते हैं, इवनिंग जॉग की वजह से दोस्त हो सकते हैं, कॉमन हॉबीज़ की वजह से दोस्त हो सकते हैं, स्विमिंग की वजह से फ्रेंड्स हो सकते हैं, शिकार की वजह से फ्रेंड्स हो सकते हैं, किताबें पढ़ने की वजह से फ्रेंड्स हो सकते हैं. लेकिन महज बातें करने की वजह से आम तौर पे मेल फ्रेंडशिप्स नहीं होती. Then there are some more differences in terms of a social behavior, that is altruistic behavior. There are some gender differences in altruistic behavior. What is altruistic behavior? Based upon altruism. यानी वो behavior जिसमें आप दूसरों के लिए, उनकी भलाई के लिए अपनी भी चीज़ें sacrifice कर देते हैं. This is a costly behavior. यानी जिसमें आप दूसरे को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, दूसरे की भलाई चाहते हैं, उसको कुछ benefit देना चाहते हैं, और उसके बदले में हो सकता है कि आपका अपना नुकसान भी हो जाए. Altruism is a special form of helping behavior that is voluntary, costly, and motivated by a desire to improve another person's welfare, rather than by the anticipation of reward. It is the helping behavior that is beneficial to others but clearly requires self-sacrifice. So, altruistic behavior में self-sacrifice का element भी शामिल है. आप दूसरे की मदद के लिए
कोई एक्शन लेते हैं, कोई बिहेवियर करते हैं, उसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसमें आप ये नहीं सोचते कि मुझे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान. सो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज़ नॉट गाइडेड बाय अ रिवॉर्ड. द रिवॉर्ड इज़ नॉट द मैग्नेट हियर. इट इज़ मोर ऑफ अ कॉग्निटिव थिंग कि इसमें आपको रिवॉर्ड की पुल नहीं है, रिवॉर्ड का लालच नहीं है, लेकिन आप कॉग्निटिवली ये डिसाइड करते हैं कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए. मे बी आप एक ऐसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे जिसमें आपको 2 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलनी थी, लेकिन आपने रास्ते में देखा एक बीमार बूढ़ा शख्स पड़ा हुआ है और उसकी मदद करने वाला कोई नहीं, और अगर उसको और 1-2 घंटे में हॉस्पिटल ना पहुंचाया गया तो शायद उसका बचना ही नामुमकिन है. सो मैनी ऑफ अस will probably decide not to go for the interview and take the poor old man to the hospital. This would be an example of altruistic behavior. बहुत से लोग सोचेंगे कि नहीं हमें इंटरव्यू पे जाना चाहिए क्योंकि वो उनकी ज़िंदगी का मामला है. But then this is, as we have said, this is a cognitive phenomenon. ये आपने कैसे सोचा, किस तरह से फैसला किया, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं. So research shows that there are differences in altruism shown by and experienced by men and women. जहाँ तक altruistic behavior को express करने का ताल्लुक है, जहाँ तक उसके लिए willingness का ताल्लुक है, females are quite willing, more willing than men. लेकिन willingness क्या imply करती है कि वो शख्स altruistic एक्ट में इंडल्ज भी करेगा या नहीं, दैट इज अनदर क्वेश्चन. एज फार एज विलिंगनेस टू इंडल्ज इनटू एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर और सेल्फ सैक्रिफाइस फॉर अदर्स वेलफेयर इज कंसर्न्ड, मोर फीमेल्स देन मेल्स रिपोर्ट दिस विलिंगनेस. हाउएवर, देयर इज नो क्लियर कट एम्पिरिकल एविडेंस टू सजेस्ट if there are any differences in the actual performance of altruistic behavior. Women are more likely to provide help and emotional support in connection with their traditional role as nurturers. However, in situations involving dangerous emergencies, men are more likely to intervene. चुनांचे रिसर्च से ये बात जाहिर होती है कि फीमेल्स जो हैं ज़्यादा विलिंग होती हैं. जब उनसे पूछा जाए तो वो एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए ज़्यादा विलिंग होती हैं, काम करने पे ज़्यादा आमादा होती हैं, आमादगी ज़्यादा जाहिर करती हैं. लेकिन मर्द जो कि कम विलिंगनेस आमतौर पे शो करते हैं, लेकिन अगर वो शो करें और अगर उसमें इंडल्ज करें तो वो उसमें काफ़ी आगे तक चले जाते हैं. और उसके आमतौर पे मर्द जिस तरह के एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर्स में इंडल्ज करते हैं वो उससे खासे मुख्तलिफ और खासे सीरियस और खासे लॉन्ग टर्म होते हैं जिनमें कि औरतें इंडल्ज करती हैं. फीमेल्स का एक ट्रेडिशनल रोल है ऑफ अ नर्चरिंग पर्सन. नर्चरेंस उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है, स्टीरियोटिपिकल हिस्सा है, जेन्युइन हिस्सा है, इनबॉर्न हिस्सा है, ये एक अलग बहस है. बट वुमेन आर मोर नर्चरेंट, वी नो दैट, एज कम्पेयर टू मेन. तो उनकी नेचर में, उनकी तरबियत के बाद जिस तरह की एक पर्सनैलिटी उनकी बन जाती है, वो यूजुअली नर्चर करना उनकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाता है. अफेक्शन और अफेक्शन का इजहार उनका स्टाइल बन चुका होता है. इसलिए बहुत अजीब बात नहीं होती कि वो अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर में इंडल्ज करें. लेकिन जहाँ तक सीरियस, कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस किस्म के अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर का ताल्लुक है, मैन इंडल्ज इन दैट बिहेवियर मच मोर देन वुमेन. जहाँ सीरियस इमरजेंसीज की बात आती है, किसी हादसे में किसी की मदद करने की बात आती है, नेचुरल डिजास्टर की सूरत में, अर्थक्वेक की सूरत में, फ्लड की सूरत में, व्हेन people have to be rescued and rehabilitated, we see that more men are there for the rescuing efforts and very few women are there. आदमी पहाड़ों की चोटियों पर जाकर लोगों को लाते हैं, अर्थक्वेक में चट्टानों के नीचे दबे हुए लोगों को निकालते हैं, वॉर टाइम में बहुत बहुत दूर की जगहों पर जाते हैं और अपने लोगों की मदद करते हैं. फीमेल्स इस तरह के बिहेवियर्स में आमतौर पे हमें दिखाई नहीं देती या बहुत कम दिखाई देती. अगेन इट्स अ कल्चरल थिंग. औरतों को तरबियत ही नहीं दी जाती, उन टास्क में उनको स्किल ही नहीं हासिल होता जो कि इस तरह की एफर्ट्स के लिए रिक्वायर्ड है. एक आम टायर बदलने की बात है. अगर आपके सामने कोई सड़क पे कमज़ोर शख्स या बीमार शख्स अपना गाड़ी का टायर बदलने की कोशिश कर रहा है, आप टायर बदलना
चाहती हैं, इफ़ यू आर अ फीमेल, हेल्प करना चाहती हैं, बट यू डू नॉट नो हाउ टू चेंज द व्हील। इसका मतलब है कि आपकी ख्वाहिश तो थी, विलिंगनेस थी, लेकिन आप कर नहीं पाए। दूसरी जानिब एक 10-12 साल का बच्चा आएगा, लड़का, और वो 1 सेकंड में उस शख्स के पास पहुंच जाएगा, उसको कहेगा मैं आपका टायर बदल देता हूँ। उसके पास वो स्किल था, इसलिए उसने उसकी हेल्प भी कर दी। सो इट इज़ नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिनोमेनन कि मर्द जो है इस तरह के बिहेवियर में ज़्यादा इंडल्ज करते हैं, औरतें इस तरह के बिहेवियर में ज़्यादा इंडल्ज करती हैं। नो, द विलिंगनेस इज देयर, द फीलिंग इज देयर, द डिज़ायर टू हेल्प अदर्स इज देयर, बट द वे इट इज़ एक्सप्रेस्ड इज डिफरेंट in men and women, but the differences are there. Again, हर थोड़ी देर के बाद मैं आपसे यही बात कहती हूँ, अपने जहन में ये बात रखिए, हम सिर्फ देख रहे हैं डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और अभी तक जितने डिफरेंसेस की हमने बात की उनमें कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि मर्द और औरत दो टोटली सेपरेट एंटिटीज हैं। We see that there are overlaps. Both of them have same abilities, same skills, same feelings, but in varying degrees. कोई चीज़ मेल्स में ज़्यादा है और कोई चीज़ फीमेल्स में ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मेल्स में है और औरतें जो बिल्कुल वॉइड है उनमें वो चीज़ है ही नहीं, या मोहब्बत करना, अफेक्शन, नर्चरेंस औरतों में है और मर्दों में बिल्कुल नहीं है। So we see there are more of overlaps, more of commonalities and similarities than differences. इसी तरह से कुछ चीज़ें और हैं जिसमें मर्दों और औरतों में रिसर्च ने देखा कि कुछ जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मसलन सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी ज़ात के बारे में कॉन्फिडेंस, एस्टीम, अपनी ज़ात को आप कितनी ताज़ीम देते हैं, कितनी इज्जत देते हैं अपनी ज़ात को, अपने आप को कितना आला या अच्छा समझते हैं। अगेन, नॉन साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले लोगों की तरह से ये मत समझिए कि सेल्फ एस्टीम से मुराद है प्राइड या गुरूर या एरोगेंस। नहीं, इसका मतलब है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ क्या समझते हैं, अपने आप को किसी चीज़ के काबिल समझते हैं या नहीं समझते। When asked to perform a task, especially a new one, females hesitate more than men. If women are given a task, particularly the one usually associated with the male role, women tend to be less self-confident than men, whereas actually they may perform the same way as men did. So self-confidence के मामले में हम ये देखते हैं कि self-confidence कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको किसी पैमाने से हम मेजर कर लें, और बाज़ औक़ात self-confidence situations पे भी डिपेंड करता है। It also depends upon the people around you. For example, if you have to make a presentation, sitting in the cafeteria of your university or your college, then you feel what? You feel tense. Then somebody comes and says, there is no presentation, we'll just sit and talk. अब presentation नहीं है, marks नहीं लगने, सिर्फ discussion होगी। आपकी एंजाइटी खत्म हो जाती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। वही कैफेटेरिया है, वही लोग हैं, वही सिचुएशन है, अब सिर्फ आपको इवैल्यूएट नहीं किया जा रहा, आपके नंबर नहीं लगाए जा रहे। इसी तरह से आप अपने दोस्तों के साथ बहुत कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, उनके साथ जोक्स भी शेयर करते हैं, उनके साथ गप्पे भी लगाते हैं, कभी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का एहसास ही नहीं होता। लेकिन आप ही जब अपने किसी टीचर के सामने या अपने वालिद के सामने जाते हैं या बड़े भाई के सामने, तो आपके ख्याल में आपसे बहुत ज़्यादा काबिल है, तो आपको खुद ब खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस कुछ शेक होता हुआ महसूस होता है। देखा यह गया है कि मेल्स और फीमेल्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस के इंडिसेस में कुछ फ़र्क पाया जाता है। आमतौर पे फीमेल्स जो है नई टास्क शुरू करने से हिचकिचाती हैं, ख़ासतौर पे अगर कोई ऐसी टास्क हो जो कि स्टीरियोटिपिकली ये समझा जाए कि मेल टास्क, मसलन बिजली का बल्ब चेंज करना या एक प्लग चेंज करना, इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये मर्दों के काम है। रिसर्च है जिससे ये देखा गया है कि औरतें इस तरह के काम में इनिशिएटिव लेने से घबराती हैं। हालांकि बाद में जब रिजल्ट्स देखे जाएं तो मालूम होता है कि औरतों ने और आदमियों ने एक साथ परफॉर्म किया। इनफैक्ट मेनी वुमेन हैड
many of them had performed better than men. तो इसके बावजूद कि औरतें जो हैं capable हैं मर्दों जैसा परफॉर्म करने के, बल्कि उनसे बेहतर परफॉर्म करने के, इसके बावजूद बहुत सी औरतें जो हैं वो हिचकिचाती हैं, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस महसूस करती हैं. सेल्फ एस्टीम में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है. Although the gender differences in self-esteem may not be huge, men generally score higher than women. A number of factors contribute to this difference. Women's perception of their sense of interdependence and connection with others largely influences their self-esteem. Men's self-esteem, on the other hand, has roots in their assessment of their unique characteristics and abilities, traits that help them distinguish themselves from other people. Women generally evaluate themselves more harshly than men. More men than women rate themselves as above average. So self-esteem के मामले में देखा गया है कि on average मर्द higher self-esteem rate करते हैं, जबकि females self-esteem में जरा सा अपने आप को नीचा रेट करती हैं. जब एक स्टडी में मेल्स और फीमेल्स को ये कहा गया कि अपने आप को रेट करें परफॉर्मेंस के हिसाब से और एबिलिटी के हिसाब से, तो ज़्यादा मर्दों ने अपने आप को अबव एवरेज रेटिंग दी और ज़्यादा औरतों ने अपने आप को एवरेज या बिलो एवरेज रेटिंग दी. औरतें अपने बारे में ज़्यादा क्रिटिकल होती हैं. दे टेंड टू ट्रीट देमसेल्व्स मोर हार्शली. वो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म ज़्यादा करती हैं, अपने आप को ज़्यादा स्ट्रिक्टली एवेलुएट करती हैं. मेल्स अपने आप को स्ट्रिक्टली ज़्यादा एवेलुएट नहीं करते. इसके बहुत से रीजंस हो सकते हैं. फीमेल्स को शायद शुरू से इतना ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, उनको कॉन्शियस किया जाता है इस बारे में कि दूसरे लोग उनको इवेलुएट कर रहे हैं और जज कर रहे हैं, तो इसलिए वो भी सीख जाती हैं अपने आप को इवेलुएट करना और जज करना. मगर सेल्फ एस्टीम कम होना या ज़्यादा होना, इससे मुराद ये नहीं कि औरतें अपने आप को हमेशा कमतर ही समझती हैं. वी नो दैट द नंबर ऑफ एबल एंड केपेबल women is increasing more and more every year, every time. लेकिन टेंडेंसी की बात हम कर रहे हैं कि औरतों में टेंडेंसी है अपने आप को ज़रा कम देखने की. मर्दों में आदत है कि जिस एबिलिटी के वो मालिक है उससे ज़रा बढ़ के अपने आप को महसूस करते हैं. सो ये तो थी कुछ चीज़ें जिनमें हमने जेंडर डिफरेंसेस देखे. एक आखिरी चीज़ जिसके बारे में रिसर्च फाइंडिंग्स मौजूद हैं और इंटरेस्टिंग किस्म के जेंडर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, वो है लीडरशिप. जेंडर एंड लीडरशिप, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एरियाज स्टडीड इन साइकोलॉजी. लीडरशिप हम जानते हैं कि क़यादत करने की सलाहियत है, दूसरे लोगों को गाइड करना, लीड करना, उनको रास्ता दिखाना और सिचुएशन का चार्ज ले लेना. देयर हैव बीन जेंडर डिफरेंसेस बिटवीन in terms of leadership and leadership ability shown, exhibited and used by men and women. लीडरशिप की सलाहियत मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती है, लेकिन the way they use it is different. There is a great likelihood for men than women to emerge as leaders in initially leaderless groups. This is more true when the groups are short-term and when they involve tasks not requiring complex social interaction. But that does not mean that females lack leadership qualities. A review of leadership literature revealed that female leaders as compared to men are more likely to adopt a democratic or participative style and less likely to adopt an autocratic or directive style. The review also provided some indication that women are more likely to use an interpersonally oriented style and men are more likely to adopt a task-oriented style. So, leadership के मामले में leadership मर्दों और औरतों दोनों में पाई जाती है. स्टाइल फर्क है. औरतें जैसे कि उनकी टिपिकल पर्सनालिटी है, नर्चरेंट होती हैं, ज़्यादा एफिलिएशन ओरिएंटेड होती हैं, वो एक इंटरपर्सनल तरह का स्टाइल इस्तेमाल करती हैं, ज़्यादा पर्सनल उसके अंदर टच मौजूद होता है. जिस ऑर्गेनाइजेशन की लीडर औरत हो वहाँ पे लोगों के पर्सनल प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है. उनका स्टाइल डेमोक्रेटिक है. मर्दों का स्टाइल ऑटोक्रेटिक है. अपने कोलीग्स के पर्सनल इश्यूज को वो इम्पोर्टेंट नहीं देते, छोटे छोटे पर्सनल मैटर्स को ज़्यादा अहमियत नहीं देते. उनके स्टाइल में मेन इम्पोर्टेंस है टास्क को. सो दे हैव अ टास्क ओरिएंटेड स्टाइल. अगेन वी कैन सी दैट देयर आर डिफरेंसेस
बट देयर आर कॉमनैलिटीज। डिफरेंसेस सिर्फ इस हद तक है उसी चीज के एक पहलू में मेल्स को बर्तरी हासिल है और दूसरे पहलू में फीमेल्स को। ऐसी कोई भी हमने पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक अभी तक अपने पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर में नहीं देखी जिसमें कोई पर्सनालिटी एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक मेल्स में तो हो लेकिन फीमेल्स में सिरे से ना हो, या फीमेल्स में तो हो और मेल्स उससे बिल्कुल फारिग हो। सो as a result of this discussion on personality, we can see that there are gender differences in personality makeup or personality pattern and attributes, but they are not serious differences. These differences do not indicate at all that men and women are two different entities. Both have the same attributes, same characteristics, but different amount, different level, different intensity. आइंदा लेक्चर में हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर की, यानी मर्दों और औरतों की कॉग्निशन में, इंटेलिजेंस में और एबिलिटी में कोई फर्क है या नहीं, और अगर है तो कितना अहम है, और अगर फर्क नहीं है तो हम क्यों दोनों को एक बराबर ज़हीन और काबिल नहीं समझते। ये सब कुछ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।